और वो जंग आपके लिए लड़ने जा रहा है। ओ चाहे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, आपको जवाब नहीं मिला, आज परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा हो गया है और आपके लिए वो युद्ध लड़ने जा रहा है। He is about to fight that battle for you. He is about to bring that wayward child back into the ways of the Lord. He is about to bring your husband and your wife back into the ways of the Lord. He's about to bring those finances back into your home. He's about to bring health back into that body that is sick and that is riddled with disease and that is lying on that bed of affliction. He is about to bring healing and deliverance into that mind that is depressed and completely destroyed. He is about to restore. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is His name. पराक्रमी युद्ध में पराक्रमी युद्ध में देता जय, यहोवा तेरा नाम. Lift up your hands and receive it right now. Receive it. The Lord is by your side. The Lord, the captain of the hosts of the armies of Israel, stands with you. Oh, He fights for you. He goes before you. He goes before you. He is walking before you. He is going ahead of you, and He is fighting for you. You don't have to face the enemy on your own. The Lord stands in front of you. He stands between you and the enemy. The Lord stands between you and the Red Sea. He stands between you and the armies of Pharaoh that are coming from behind you. The Lord stands with you. Thank you, Lord, that that angel with a drawn sword is standing in this place. And I pray today that every person would understand the word that will be spoken by the mouth of your servant. Anoint him with Holy Ghost, with fire. Every word that he speaks, his mind, his body, his thoughts, emotions, everything under the unction of your Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shalom and praise the Lord, brothers and sisters, and welcome to our Sunday service. जय मसीह की फिर एक बार और फिर एक बार और हमारे इस सभा में आपका स्वागत हम कर रहे हैं. So today we're going to continue what we started last week on the armor of God. इसलिए आइए आज जो हमने पिछले हफ्ते में चालू किया था बस उसी विषय पर हम आज भी आगे बढ़ने वाले हैं. Amen. So last week we started with the belt of truth. अब पिछले हफ्ते में हमने जो कमरबंद या कमरपट्टा सत्य का था उससे हमने शुरुआत की थी. Now don't forget, the belt is very important. It is the belt that holds the whole armor in place. अब ये भूलिए मत बात कि जो कमरबंद या कमरपट्टा होता है वो पूरे हथियार को या पूरे सामग्री को वो पकड़कर वो मजबूत करती है, रखती है. So it holds. So this morning, इसलिए अभी आज सुबह के वक्त we're going to look at the second piece of the armor. हम अब दूसरे इस हथियार के इस भाग को देखने वाले हैं. It's called the breastplate of righteousness. और ये जो दूसरा भाग जो होता है, हिस्सा जो होता है, वो है झिलम, धार्मिकता की झिलम. Now the breastplate, ये जो छाती पर जो झिलम पहना जाता है, protects. ये क्या करता है? ये हिफाजत करती है या इसको वो सुरक्षित रखती What है. does it protect? It protects the most vital organs in your body.
अब किस चीज को वो सुरक्षित रखती है? सबसे जो महत्वपूर्ण अंग आपके शरीर में होता है उसको सुरक्षित रखती है। हालेलुया। So we all know the most important organ that we have is the heart. यस, आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अंग जो शरीर में का मनुष्य का कौन सा है? वो है आपका हृदय। And then we have the lungs. और उसके बाद में जो आपके लंग्स है। You know how many people are dying today because of lung infection because of the virus? और ये जो लंग्स में उनको इन्फेक्शन हो गया है, बीमारी हो गई है इस वायरस के चलते, इसलिए इतने ज्यादा लोग अब मर रहे हैं फेफड़े में जो उनको बीमारी होती है। So then we have the intestines. और फिर उसके बाद जो अंदर के इंटेस्टाइन्स कहलाए जाते हैं वो होती है। Now for the Jews, when we say the heart, अब आंत उसको बोलती है, आंत जो पेट के अंदर होती है जहाँ- उसमें भी। अब यहूदियों के लिए सुनिए, जब हृदय के बारे में बताया जाता है so the heart is associated with the mind and the will. और मन या हृदय जो होता है आपके मन के साथ और आपकी इच्छा के साथ जुड़ा हुआ होता है। So if you go further down with the intestines, that's with emotions. That's which they call bowels. So that's emotions. अब अगर आप बिल्कुल अंदर आपके पेट के अंदर के विभाग में अगर अंदर जाओगे, वहां पर अतड़ियां होती है। वहां पर वो लोग कहते हैं कि क्योंकि बाइबल कलाम में भी लिखा हुआ है, वहां से सारे जो भावनाएं हैं वो उमड़ के निकलती है। Now it's the mind and the heart where Satan most fiercely attacks. सुनिए गौर से, आपका मन है, आपका हृदय है जिसमें आपके मन और इच्छाएं होती हैं, वहां पर शैतान बड़े जोर तरीके से, जोरावर तरीके से आक्रमण करता है। Now when you go to war जब आप युद्ध में जाते हो and when you're fighting a soldier, और जब आप किसी एक सैनिक से मानो युद्ध लड़ रहे हो, जंग कर रहे हो, you would always try to pierce the breastplate. तब जब आप तलवार आपकी चला रहे हो तो आप यही कोशिश करते रहोगे कि वो जो झिलम है उसमें से वो तलवार कैसे भी आप घुसाएं। So once you manage to pierce or to enter into the breastplate, you can, harm the most vital part of the body, which can be the lungs or the heart or the intestines. This is where many people, many soldiers, they get wounded or they fall. अब ये बात क्या होती है, जब कोई एक सैनिक दूसरे के साथ युद्ध लड़ने जाता है तो वो उस झिलम को वो पियर्स करने के लिए उसमें तलवार घुसाने की बहुत कोशिश करता है। जब वो काबिल हो जाता है तब क्या होता है, उसकी तलवार उस दूसरे सैनिक के हृदय में जाकर वो उसको मार डालती है और तब उसको जय मिलता है। Now when Paul was writing about the breastplate of righteousness, he was also referring to the Old Testament in Isaiah, which speaks, for example, Isaiah 11:5 says, he will wear righteousness like a belt and truth like an undergarment. That's Isaiah 11:5. और यशाया की पत्री हम देखेंगे, यशाया नबी की पत्री वो 11 और 5 में उसने लिखा हुआ है कि धार्मिकता को उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। And Hallelujah. in Isaiah 59:17, और उसमें यशाया की किताब में उसमें it continues to say, he put on righteousness as his body armor and placed the helmet of salvation on his head. He clothed himself with a robe of vengeance and wrapped himself in a cloak of divine passion. 17वीं आयत, उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया है। So Paul, referring to the Old Testament, he knew the scripture in Isaiah. That is why he took the scripture and he used it as an idiom. The soldier was used as an idiom to explain the full armor of God that we need to put on. सुनिए, पौलुस को यशाया नबी के ये जो वचन है कलाम में पुराने नियम में उसकी जानकारी थी, वो जान रहा था, इसलिए इसी का उसने वो उदाहरण उठा लिया और एक सैनिक का उदाहरण हमारे सामने उसने पेश किया ताकि हम समझ ले कि परमेश्वर के सारी हथियार बांध के लेना, पहन के लेना का मतलब क्या होता है। So today we're dealing with the
breastplate that protects the heart. So we're going to speak about the heart. इसलिए आज आइए हम हृदय के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए ये जो दिल या हृदय होता है उस पर जो झिलम पहना जाता है उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके बारे में हम आज देखेंगे। So it says righteousness. Why does Paul use the word breastplate of righteousness? अब यहाँ पर धर्मीपन की झिलम का झिलम ऐसा क्यों पौलुस बोल रहा है? Now, धार्मिकता क्यों? what is righteousness? Righteousness is ethical conduct. अब ये जो धार्मिकता, सुनिए, धार्मिकता का शब्द इसका अर्थ क्या होता है? जब आप ठीक ढंग से व्यवहार लोगों के साथ करते हो, सही ढंग का It's a व्यवहार way करना। of living. That means right means moral correctness. अब आपका जो जीवन शैली है, जीवन जीने का आपका जो तरीका होता है वो नैतिक तौर पर, नैतिक ढंग पर सही होना जरूरी है। And the rest of the word righteous part means to have the nature of. So you have that nature of Yes. doing what is right. धार्मिकता का तीसरा अर्थ ये है, भैया सुन लीजिए गौर से, कि आप में वो स्वभाव होता है। आप धार्मिक जब कब कहलाए जाते हो? जब आप में वो स्वभाव होता है कि आप बार बार सही करते रहते हो, सही आप करते रहते हो। Now, this study of the breastplate of righteousness is going to take us into a deep study which is going to bless you this morning. Amen. सुनिए, धार्मिकता की झिलम, ये जो पढ़ाई या अध्ययन आज का है, बड़े गहराई में हम जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम सारी चीजों को समझकर, सोच समझकर अपनाने वाले हैं। If you just look at the breastplate, you say, yes, it's used to go to war, and it protects the heart and the body, that is the physical body. अगर आप किसी झिलम को सैनिक के ऊपर देखोगे, आप क्या बोलेंगे? बोलोगे जी हाँ, ये उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसके हृदय को सुरक्षित रखने के लिए दिया गया है। But we're going to go into the spiritual world today. ये आप हथियार के रूप में आप उसको देखेंगे, स्वाभाविक रूप में। लेकिन आज आइए आत्मिक हम स्तर पर जाएंगे, आत्मिक तौर से देखेंगे। Because we are not going to fight flesh That's and right. blood. सुनिए, आपका युद्ध रक्त और मांस के साथ नहीं है। So we are spiritual beings, and our enemy is also in the spiritual realm. आप और मैं एक रूहानी स्तर पर, आत्मिक स्तर पर हम जी रहे हैं, और हमारा जो शत्रु और दुश्मन उसी स्तर पर हमारे साथ जंग लड़ रहा है, And he's attacking. और वो हमला करता आ रहा है। He doesn't waste time. He doesn't leave you alone any minute. He is attacking. That's right. वो आपको अकेला एक मिनट भी नहीं छोड़ता है भैया। वो बार बार एक के बाद एक हमला करता जाता है। At this very moment he's attacking and you don't know it. You need to Yes. fight him right now. Resist That's him right now. इसी क्षण में वो आप पर आक्रमण कर रहा है, अभी अभी हमला कर रहा है, और आपको खड़े होकर उसका सामना करना जरूरी है। Resist him and he will That's flee. right. शैतान का सामना आप कीजिए और आपसे वो दूर भाग He will जाएगा। attack you now, especially he doesn't want you to hear this sermon. अभी अभी वो आप पर हमला कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आज का जो प्रचार आप सुन लें। To develop righteousness, we need to develop a purity of heart. सुनिए, धार्मिकता को बढ़ाने के लिए हमारे अंदर जो हृदय है, हमारा मन, उसको शुद्ध करना, शुद्धता को बढ़ाना, इसकी जरूरत है। So purity of heart that translates into actions. इसलिए हृदय की शुद्धता या शुद्धिकरण जो होता है वो हमारे कृति और कर्मों में दिखता है। So this creates a lifestyle that we put into practice. एक शुद्ध मन जो होता है वो उस व्यक्ति के कर्मों के द्वारा दिख जाता है, और वो धीरे धीरे उस व्यक्ति की जीवन शैली या उस व्यक्ति के जीवनी का तरीका बन In जाता है। other words, दूसरे शब्दों में we are conformed to the likeness of Christ. सुनिए, दूसरे शब्दों में आप और मैं यीशु मसीह के स्वरूप में धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। Amen. So we Hallelujah. have Romans 8:29. For it's in Romans 8:29 it says, "For those who he foreknew," we know this verse by heart, some of you, "he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers." रोमियो की पत्री 8:29 मेरे साथ पढ़ लीजिए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा
ठहरे। So when we become conformed to the likeness of Christ, इसका मतलब होता है कि यीशु मसीह के स्वरूप में जब हम बदलते जाते हैं, our choices become more righteous, हमारे जो चुनाव वो ज्यादा पवित्र और ज्यादा धर्मी बनने लगते हैं। and these godly choices that we make, अब ये जो अच्छे जो चुनाव हम अभी करने लगते हैं, listen carefully, ध्यान से सुनिए, these godly choices that we make जो आप धर्मी या अच्छे चुनाव करते हैं, अच्छे चीजें जब आप चुनते हैं protects us जिंदगी में, तब आपको वो महफूज रखता है। it protects us from temptation and deception from the devil. किससे सुरक्षित आपको वो रखता है? शैतान की सारी अभिलाषाओं से, शैतान के सारे हमलों से। Man, Hallelujah. it protects you. It is a Amen. protection. ये जब आप शुद्धता का जीवन व्यतीत करते हो, तब आप अपने आप को सुरक्षित शैतान से और दुश्मन से रख रहे हो। So in Proverbs 8:20 it says, I walk in the way of righteousness in the paths of justice. नीति वचन में लिखा गया है, नीति वचन Proverbs 8:20. और 8:20 में ऐसे लिखा गया है कि वो बोलता है कि मैं धर्मीपन के उस मार्ग में मैं चलता हूँ। Amen. Hallelujah. Now listen carefully. ध्यान से I सुनिए, want you to write this down. सब I लोग ध्यान से walk सुनिए। in the way of righteousness. You can write it in English or Marathi or Hindi, That's right. whatever language you want. But you must confess this morning. I walk in the way Amen. of righteousness. आमेन। आइए आप कौन सी भी भाषा में सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कौन सी भी भाषा में चाहे आप लिख लीजिए, आपकी किताब में, आपके मन में इस बात को अभी अभी लिख लीजिए, बोल दीजिए, मेरे साथ बोलिए, हिंदी में बोलिए, मैं धर्म के मार्ग में चलता हूँ। Amen. Write it down. It's a confession you make this morning. ये किधर भी आप लिख लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये एक कबूली आपको आज करनी For होगी। this morning, like the Bible says, put on the breastplate of righteousness. Amen. We are going to put this breastplate on. आमेन। क्योंकि जैसे बाइबल में वचन लिखा हुआ है कि ये झिलम को आप पहन लीजिए। आज आप और मैं इस झिलम को पहनने वाले हैं, हमें महफूज रखने के लिए। And how does this protect us? और ये चीज हमें सुरक्षित कैसे रख सकती I'm है, going to tell you now. मैं आपको अभी अभी बताने वाला हूँ। You're going to find out. और आप और मैं ये दोनों ढूंढ के और खोज के हम निकालने वाले हैं। हालेलुया। So it says in 1 Thessalonians 5:23. और पहले थेसलोनी 5:23 में लिखा गया है, Now may the God of peace himself make you completely holy, and may your spirit and soul and body Amen. be kept entirely blameless Amen. at the coming of our Lord Jesus. हालेलुया। 5:23 पहले थेसलोनिकियों, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। हालेलुया। We have been made in the image of God. सुनिए, आप और मैं प्रभु की प्रतिमा या स्वरूप में हमें बनाया है। So our God is, we have God the Father, it's the Trinity, we have God the Father, Amen. the Son of God and the Holy Spirit. देखिए, त्रिएकता परमेश्वर पर हमारा विश्वास है। वो कौन है? पिता परमेश्वर, फिर उसके बाद उसका बेटा यीशु और पवित्र आत्मा। So we, man and woman, इसलिए आप और मैं जो मानव है, we also are made up of 3 parts. हम में भी 3 इस प्रकार के विभाग है, Since we also are made in the image of God. क्योंकि हमें प्रभु की परमेश्वर की प्रतिमा में बनाया गया है। So you have the Spirit. I think we showed the picture, the image earlier on. We have the Spirit, the soul, and we have the body. आमेन। हमने आपको एक चित्र इसके पहले दिखाया था, उसमें हम आपने देखा होगा 3 विभाग होते। कौन सा है? शरीर, प्राण और आत्मा। So the Spirit, the soul, and the body. शरीर, प्राण और आत्मा, 3 विभाग मनुष्य के। So what is righteousness? In other words, also you can say righteousness is. इसलिए सुनिए, धार्मिकता दूसरे शब्दों में क्या होती है, आप ऐसा भी वर्णन कर सकते हैं। For you and I who are believers in Jesus Christ. आपके और मेरे लिए, हम जो विश्वासी यीशु में हैं। So righteousness is the application of truth. सीधे और बड़े सीधे और साफ तरीके से अगर बोला जाए, धार्मिकता वो सत्य या सच्चाई का एप्लीकेशन या उसका लागू करना होता है। Now what is this? This is
God's based Amen. standard. It is a standard. This is God's standard. आमीन। ये क्या होता है? धार्मिकता ये परमेश्वर का एक दर्जा होता है जिसको हम हमारे जीवन में लागू करते हैं। आमीन। This morning, the devil does not want you to hear the sermon. सुनिए, शैतान आज सुबह बिल्कुल नहीं चाहता कि आप प्रभु का कलाम और इस प्रचार को सुने। So, righteousness is God's application of truth. और इसीलिए ये जो धार्मिकता होती है वो परमेश्वर का ये सच्चाई का लागू करना ये होता है। Now, since you made up of 3 parts, अनुरोध करना। अब the soul, पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपके प्राण में नहीं रह सकता, not in the body. आपके शरीर में सत्य नहीं रह सकता। But लेकिन we have to work out our salvation, like the Bible says, with fear and trembling, so that we, the truth that is in the spirit, can be released Amen. into the soul, and which then can be put to practice in the Amen. physical that is in the body. ये जो सच्चाई है ये हमारे अंदर पवित्र आत्मा ले आता है ताकि वो हमारे प्राण में से और हमारे मन में से और फिर हमारे शरीर और आत्मा में से वो बाहर निकले आए और हमारे अंदर से दिखे। Now, the spirit can only take truth. सुनिए, आत्मा जो होता है केवल सच्चेपन को ही बर्दाश्त That करता is है। why it's called holy. He's called holy. He is holy, Amen. and he only accepts that is the truth from God. पवित्र, उसको पवित्र आत्मा इसलिए कहलाया गया है क्योंकि पवित्र वो क्यों बनता है? क्योंकि केवल सत्य जो सच होता है, जो सच्चाई होता है, जो झूठ नहीं है, वो ही बातें उसको बर्दाश्त होती है, Now, वो सहन करता है। The soul, that is the part where we have emotions, and that is the part where we use our mind, our heart. So our heart is attached to the soul. हमारा प्राण का भाग जो मनुष्य के अंदर है, प्राण का भाग, सुनिए, हमारा प्राण का भाग वो दिल और हृदय के साथ जुड़ा हुआ होता है क्योंकि हमारे प्राण में हमारी भावनाएं होती है, हमारी सारी इच्छाएं होती है, ख्याल होते हैं। Now, how do you keep your soul? अब आप आपके प्राण का की रक्षा कैसे कर सकते हैं? How do you keep your house? आपके घर को आप कैसे संभाल के सीधा और अच्छा रखते हैं? Is there any rubbish in your house? आपके घर को सही कैसे रखते हैं? आपके घर में क्या इधर उधर कूड़ा है? You know what rubbish is? कूड़ा क्या होता है? पसारा जिसको हम बोलते हैं। The English say rubbish. और जो इंग्लिश के लोग हैं वो रबिश बोलते हैं इंग्लिश में। When I say English, I'm talking from the British, and then we have the Americans. They would say trash. यूरोप के लोग वो रबिश बोलते हैं कूड़े को, पर अमेरिका के लोग उसी कूड़े को ट्रैश बोलते हैं। Now, अभी rubbish is something that attracts. अभी कूड़ा क्या होता है? कूड़ा इस प्रकार की चीज होती है जो गलत चीजों को अपने आप को आकर्षित It करती है। attracts rodents. कौन सी चीजों को आकर्षित करती है? जो रोडेंट्स जो It can be, चूहे हुए होते हैं, rats, or it can be cockroaches, whatever. चूहे और कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको जो कूड़ा होता है उसको वो आकर्षित करता है। Now, as long as you keep rubbish in your house, अब आपके घर में जब तक कूड़ा जमा हो, you will have cockroaches and you will have rats. सब प्रकार के कीड़े मकोड़े आपके घर में उसके साथ साथ आएंगे, And if you want to get rid of them, चूहे भी आएंगे। अगर आपको इन सारे कीड़ों को निकालना हो, instead of wasting money and going to call the exterminators, आप बाहर जाके जो इन कीड़े मकोड़े को मारने वाले लोग होते हैं उनको बुलाने के बावजूद get rid of the rubbish. आपको घर का कूड़ा पहले निकालना पड़ेगा। So if you want the rodents to be in your house, you keep the rubbish. अब अगर आप ये चाहते हो कि भैया कीड़े मकोड़े मुझे बहुत पसंद है, चूहे भी पसंद है, तो आप कूड़ा आपके घर में वैसे ही रखो। It's the same thing in your soul. If you want to Yes. store up rubbish in your soul, अब मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ आपके प्राण के बारे में? बस ऐसा ही है। अगर आपके प्राण के अंदर आप कूड़ा जमा करके रखते हो और वो निकालने के लिए तैयार नहीं होते, rubbish in your soul represents unrighteousness, which is an invitation for demons to enter. सुनिए, आपके प्राण के अंदर जो कूड़ा जमा हो गया है वो अधर्म की चीजें होती है, गंदी गंदी चीजें होती है, और वो कौन से चीजों को आकर्षित करती है? दुष्ट आत्माओं को।
In other words, दूसरे शब्दों में they have your breastplate has been pierced. So now demons are coming in. The sword That's right. can harm you, can kill you. Demons have entered. सुनिए, दूसरे शब्दों में आपके अंदर कूड़ा घुस गया है, मतलब जमा हो गया है, मतलब आपके झीलम को भेदा हुआ है। उसका अर्थ होता है कि अब दुष्ट आत्माओं को मार्ग मिला है आपके जीवन में घुसने के लिए, प्रवेश करने के Now लिए। you can't blame the demons because they have been given an invitation. अब इन दुष्ट आत्माओं को आप बिल्कुल दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने ही उनको आमंत्रण दिया, आपने उनका स्वागत कर दिया। As long as you keep the rubbish that you have stored, they will keep on coming. जब तक आपके जिंदगी में वो कूड़ा आप बिल्कुल जमा करके, इकट्ठा करके रखोगे संभाल के, तब तक दुष्ट आत्माएं आती जाएंगी और आप पर वो हमला करती जाएंगी। So if you want to get rid of the demons, सुनिए, अगर आपके जिंदगी में से दुष्ट आत्माओं को आपको निकालना हो, you need to get rid of the rubbish. तो कूड़ा आपके अंदर से पहले आपको निकालना Amen? पड़ेगा। And हालेलुया। now this is That's when right. अब ये बात आती है you need कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। the spirit that is inside of you किसकी जरूरत? जो आत्मा आपके अंदर है उसकी, to release. कि वो कुछ चीजों को अब छोड़ दे, छुड़ाकर It needs to release what? The truth that it received from God. अब आपको उस आत्मा की जरूरत होती है। सुन लीजिए, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, कि वो आपके अंदर से परमेश्वर के सच्चाई को और सत्य को छोड़ दे, आपके अंदर वो रिलीज करे। You see, the heart देखिए, अब हृदय जो होता है, is that part of the body, that organ that pumps blood into every part of your body. दिल या हृदय जो होता है, वो अंग आपके शरीर का होता है जिससे सारे शरीर में लहू बहता है उस हृदय के मारे। So that we all know that life is where? Life, the Bible says, is in the blood. आप सब जानते हो, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जीवन किस में होता है? जीवन लहू में होता है। हालेलुया। So the body needs blood. इसीलिए जो शरीर होता है उसे लहू की जरूरत होती है। And that heart is the most important organ that pumps life into every part of your body. अब दिल या हृदय सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो आपके पूरे शरीर में लहू को भेजता है, पंप करता That is है। why Paul is saying, put on the breastplate of righteousness Hallelujah. to protect your heart, which pumps life into all your body. इसीलिए पौलुस बोल रहा है, अरे भैया वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पौलुस कह रहा है, आपका हृदय, आपका दिल, उसे आप महफूज रखिए, सुरक्षित रखिए, उसकी रक्षा कीजिए। कैसे? वो धार्मिकता की झीलम पहनकर उसको सुरक्षित रखिए। So God has deposited it. What has He deposited? He has deposited a righteous seed into your spirit. सुनिए, ये खूबसूरत बात है, परमेश्वर ने आपके आत्मा के अंदर क्या रख दिया है, क्या बोया है? एक धार्मिक बीज। And that is the truth. ये धार्मिक बीज सत्य है। Like the Bible says, the truth will set you free. So you have been deposited Amen. with that seed Hallelujah. of righteousness. सुनिए, बाइबल में लिखा हुआ है, कलाम के अनुसार आपके अंदर धार्मिक वो बीज बोया गया है, आपके अंदर परमेश्वर ने डाला है। Now that seed is found only in your spirit. ये जो बीज आपके अंदर डाला गया है, केवल आपकी आत्मा में पाया जाता है। Only in your spirit. केवल आपकी आत्मा में। Now it's our job अब हमारा फर्ज है to let the spirit release the That's right. seed into the soul, for the soul needs to be healed. सुनिए, ये जो धार्मिक बीज आपकी आत्मा में, लिख दीजिए, आत्मा में बोया गया है। आपका कर्तव्य या फर्ज है उसको आपके प्राण के अंदर उसको छोड़ने के लिए। Now how do you allow the soul to receive what is righteous? आपके प्राण को, सुनिए, आप धार्मिक चीजों को ग्रहण करने के लिए आप अनुमति कैसे दे सकते हैं आपके प्राण को? Listen to this. ध्यान से सुनिए। Are you listening? सुन रहे हैं क्या सब? ध्यान से सुनिए। The devil loves it when you take your soul to a church. शैतान को बड़ा अच्छा लगता है जब आप आपके प्राण को कलीसिया में ले जाते हैं, Where you take your soul to a church where it does not get in contact with the spirit.
शैतान को ये अच्छा लगता है, कौन सी चीज, कि जब आपके प्राण को आप ऐसे कलीसिया में ले जाते हो जहां पर आपका प्राण उस आत्मा के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। So when you take your soul to a church where it gets in contact with the Spirit, he is not happy. इसीलिए जब आप इस प्रकार की कलीसिया में जाते हो जहां पर आपका प्राण उस आत्मा के साथ जुड़ जाता है, तब शैतान बिल्कुल नाराज होता है। Amen. So now, what makes your soul? Why does the devil? Why does he not want your soul to get in contact with the Spirit? सुनिए, सवाल ये है भैया, शैतान क्यों चाहता नहीं कि आपका प्राण पवित्र आत्मा या आपके आत्मा के साथ जुड़ जाए? क्यों नहीं चाहता वो? He does not want you to. आपके प्राण को अलग रखना वो चाहता है। क्यों? He doesn't want you to forgive. वो क्या चाहता है? अरे तू माफ मत कर। He doesn't want you, to practice forgiveness. माफी करना तू बिल्कुल मत सीख और तू करना भी मत। No. नहीं। He wants you to keep bitterness in your heart. आपके अंदर, आपके मन में कड़वाहट को वो रखता है। He wants you to be stubborn, और वो चाहता है कि आप घमंडी रहते, आप selfish. बड़े ढीठ बने रहो और स्वार्थी रहो। Yes. He wants you to abuse grace. और वो चाहता है कि जो अनुग्रह या कृपा है उसका आप गैर उपयोग करना। Now these things that you carry, गलत उपयोग। आप इन सारे जो बोझ है इसको जब आप this is उठाते हो, excess baggage which you do not want to carry. अरे ये तो जो आप ढो रहे हैं आपके अंदर, आपके ऊपर, ये ज्यादा सामान है जो आपको उठाने की जरूरत नहीं है। No, when you are going to war, if the Indian government is sending you to the LOC for war, he doesn't want you to carry all that baggage, excess baggage on your back. सुनिए, अगर भारत सरकार ने आपको युद्ध के लिए भेज दिया LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो लोग नहीं चाहेंगे, सरकार नहीं चाहेगी कि आप आपके पीठ पर जो बोझ है जिसकी जरूरत नहीं है वो आपके पीठ पर लेकर आप ढोकर चले। So even God does not want you to carry all that excess luggage. इसी प्रकार से परमेश्वर नहीं चाहता आप भी आपके जिंदगी में, आपके जीवन में इस प्रकार की गलत बातों को ढोले, उठा ले। For this baggage which is unwanted, it attracts the roaches, the rodents, because it is trash, it is rubbish. सुनिए, ये जो बोझ, आप गलत प्रकार का बोझ आप ढोते आ रहे हैं आपके ऊपर, आपके जीवन में, ये कौन सी चीजों को आकर्षित करता है? जो कीड़े मकोड़े होते हैं, दुष्ट आत्माएं होती है, उनको आप आकर्षित आपके पास करते आ रहे हैं। So that is why ये कूड़ा है। इसीलिए when you live a life of forgiving people, इसीलिए सुनिए ध्यान से, जब आप आपका जीवन, आपके जीवन का की एक आदत बना In लेते other हो words, कि माफ सबको करने you की, don't keep bitterness in your heart. माफी आप करते हो लेकिन आपके मन में कड़वाहट बिल्कुल ही नहीं रहनी You, चाहिए। you live a life of kindness, you're gentle, you're patient, Yes. and you have the fruit of the Spirit. आपके अंदर से जब पवित्र आत्मा के सारे फल दिखने लगते हैं, मतलब जब आप अच्छा भला किसी का करते हैं, चाहते हैं, या आप ममता और सहनशीलता दिखाते हो, You release that seed from the Spirit into the soul. आमेन, भलाई जब आप सब तरफ दिखाते हो, तब आत्मा में जो बीज है धार्मिकता का, हालेलुया, आपके प्राण में आप छोड़ते जाते हो। Now that the soul has received from the Spirit, अब प्राण और आत्मा एक हो गया है और प्राण ने आत्मा से प्राप्त कर लिया है। it passes it on to the body. फिर प्राण को जब ये प्राप्त होता है, ये धार्मिक बीज, तब वो शरीर में उसको भेजता है। That is when you put छोड़ता है। all that you receive from the Spirit into practice. That is holy living. Amen. A life of sanctification. अब जब शरीर में ये धार्मिक चीजें और बीज काम करने लगती है, तब ही आप आपका जीवन पवित्र और शुद्ध तौर से, तरीके से व्यतीत करना लगते हो। Now listen. If your soul Hallelujah. is contaminated, सुनिए, यदि आपका प्राण भ्रष्ट हो गया है, if your soul is contaminated, गंदा हो गया है, it cannot receive from the Spirit. अगर वो भ्रष्ट हो गया है या वो उसमें कुछ कलंक आया हुआ है शरीर के चीजों के मारे, तो आपके प्राण को आत्मिक रूहानी बातें ग्रहण वो नहीं कर सकता। We just read in the book of Romans what
God wants from us is a transformation. आमीन। रोमियो की पत्री में अभी हमने पढ़ लिया, परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बदलाव चाहता है। So the transformation only occurs when the truth of God is meditated on and righteousness is released from the Spirit. आमीन। सुनिए, ये बदलाव आपके अंदर कब होएगा? कब होएगा भाइयों बहनों? तब होएगा जब आपके आत्मा के अंदर से वो धार्मिक बीज छोड़ेगा वो आत्मा, और आपका प्राण उसको ग्रहण करेगा और शरीर में उसको Now, छुड़ाएगा। if your soul is contaminated, लेकिन अगर आपका प्राण ही अगर वो गंदा हो गया है, मलिन हो गया है, it cannot accept the truth from the Spirit. तो वो आपका प्राण जो है वो उस आत्मिक चीजों को, रूहानी बातों को ग्रहण नहीं कर पाता। So we need to इसी- decontaminate the soul. इसीलिए अब समय आ गया है, आपका प्राण का जो विभाग है उसको साफ कर दीजिए। So once it is clean, एक बार उसको आपने पूरा साफ कर दिया, धो डाला, it's like an antivirus. एक एंटीवायरस के समान होता है वो। Once you remove that virus, एक बार आपने वायरस हटा दिया, now किसी you चीज can में। receive and download that data. You can download that seed from the Spirit Amen. into the soul. आमीन। एक बार वायरस हटा दिया तो आपको डेटा डाउनलोड करने में दिक्कत नहीं होती है, जल्दी जल्दी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपके प्राण में से वायरस जब आप हटा दोगे तो आपको आत्मिक तौर से जो बीज है उसमें से आप डाउनलोड कर सकोगे। Yes. आपके प्राण में आप उन चीजों को ले सकोगे। So then the soul grabs that Amen. righteousness from the Spirit, and then it gives it to the body, and he say, yes, body, Amen. take. Hallelujah. This is now how we're going to live. We're going to live a Hallelujah. life of Amen. righteousness. We're going to live a life of holiness. Amen. And you know, this is how we're going to live our life from now on. प्राण को जब एक बार वो साफ सुथरा होता है तब वो बोलता है अभी चलो मैं उस आत्मा से रूहानी बातों को लूंगा, और वो लेता है, उसको बिल्कुल छीन के लेता है, आत्मिक चीजों को, रूहानी बातों को शरीर में वो भेजता है, छोड़ता है, और फिर वो बोलता है चलो हम तीनों अब एक साथ मिलके पवित्र, शुद्ध और धार्मिक जीवन अब से व्यतीत करेंगे। Now you're going to walk differently. You're फिर going वो- to talk differently. You're going फिर- to act differently. वो मनुष्य और वो व्यक्ति क्या करता है, अब जो वो बदलाव उसमें आता है उसके बाद में अलग ढंग से वो चलता है, अलग ढंग तरीके से बोलता है, अलग ढंग से सब चीजों को वो देखने लगता है। For the body receives from the soul, when the Amen. soul receives from the Spirit, and the Spirit Amen. receives from God. हालेलुया। क्योंकि शरीर प्राण से ग्रहण करता है, प्राण आत्मा से ग्रहण करता है, और आत्मा परमेश्वर से ग्रहण करता है। हालेलुया। God wants you to receive this morning. आज परमेश्वर चाहता कि God आप wants ग्रहण you करें। to release your spirit, to release righteousness into your soul, because your soul, Amen. our soul, is now contaminated with That's this, right. with what's happening in the world, and whatever we live in the house, and the things that happen in the house, in our homes. God wants to decontaminate Amen. the soul. परमेश्वर चाहता है कि आपके प्राणों को आप शुद्ध करें, आपके प्राणों को आप पूरी ढंग से, पूरे तौर से साफ सुथरा। बाइबल में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? आपको धार्मिकता की झिलम रखनी नहीं है, पहननी है, धारण करनी है, आपके ऊपर आपको लगानी है। हालेलुया। Yes. Amen. Like I said, oh, the devil doesn't want your soul to get in touch with the Spirit. शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका प्राण आपके आत्मा के साथ जुड़ जाए, Doesn't want you to. बिल्कुल नहीं चाहता, It keeps you away from the Spirit. बिल्कुल नहीं चाहता। वो आपको आत्मा से किसी भी प्रकार से आपको दूर रखेगा। And many times we give in into the devil. You know why? बहुत से बार हम शैतान के अधीन गिर जाते, हो जाते। क्यों? Because we do not want to take out the kachra. क्योंकि हमारे अंदर जो कचरा या कूड़ा है वो निकालने के लिए हम तैयार नहीं होते। If you don't take out the kachra, the cockroaches will not go away. अगर आपने कूड़ा नहीं निकाला, सुनिए, तो कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे, They will remain. Those वहाँ पर ही वो rodents, बैठे cockroaches रहेंगे। are the demons. वो कीड़े जो है दुष्ट आत्माएं हैं। These are the demons that influence your everyday living. ये दुष्ट आत्मा है जो आपके हर रोज के जिंदगी में, जीवन में आपके ऊपर वो प्रभाव लाती है। God wants us to put on the breastplate of हालेलुया। righteousness परमेश्वर चाहता है कि हम उस धार्मिकता की झिलम को पहने, to protect ourselves from the fiery arrows, Amen. darts
of the enemy. ताकि हम अपने आप को महफूज रख सके शैतान के सारे जलते हुए तीरों से। You know, those arrows are coming in one by one. अरे वो जलते हुए तीर है भैया, शैतान भेज रहा है एक के बाद एक हमारे ऊपर वो फेंकता रहता है। And as soon as it finds a breach, a gap in the shield, जब उसको the breastplate, उस झीलम के अंदर जब उसको एक छोटा सा छेद दिखता है, जब दिखता है उसको, it pierces, it goes in and it causes harm. तो वो जो जलती हुई तीर है उसमें, उन तीरों में से एक जलती हुई तीर उसमें से घुस जाती है और फिर वो बड़ा नाश लाने वाली वो चीज होती है आपके जीवन में। Amen. So this morning इसलिए आज सुबह we have a choice to make. सुनिए, आपको चुनाव दिया है Whether we want to put on the full armor of God, कि आपको पूरे सामग्री को अगर आपको पहनना है, हथियार, when you are protecting yourself, you are also protecting your family, you're protecting your children. जब आप अपने आप को सुरक्षित, सुनिए, आप आपकी हिफाजत जब कर रहे हो उसका मतलब है आप आपके परिवार को भी सुरक्षित रखते हो, आपके बच्चों की भी आप रक्षा कर रहे हो। Especially you, brothers, men of God. खास तौर से जो पुरुष भाई लोग हैं, प्रभु के दास जो है, The devil wants to pull you down first. सुनिए, जो पुरुष है, जो बाप है घर के, शैतान आपको नीचे गिराना चाहता है। He knows आपको, your importance in a family. जो पुरुष है, पहले शैतान उस पे हमला करता है। क्यों? पुरुष का जो स्थान एक परिवार में जो होता है, शैतान जानता है। Likes to pull down the strong man first. जो पहला बलवान पुरुष होता है, शैतान चाहता है अरे मैं उसको ही पहले गिरा दूं। That is why the brothers have to come together. The brothers need to be more present in church. इसी कारण पुरुष जो है, भाई लोग, भाई जो है, उन सब को, भाइयों को एक होना है, इकट्ठा होके कलीसिया के अंदर आना है। I was speaking about the brothers. अब मैं भाइयों के बारे में बोल रहा था। He wants to pull you down first. सुनिए, पुरुषों को मैं बोल रहा था, भाइयों को, कि शैतान चाहता है आपको पहले गिराने के लिए। So that is why instead of only seeing more sisters, I mean we should balance brothers and sisters together, but we should now be seeing more men in church. अब तक हम बहुत ज्यादा बहनों को देखते आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं ज्यादा और पुरुष जो है कलीसिया के अंदर दिखें। We should see more men in the prayer meeting. That will be a surprise. That Amen. will be like a Yes. miracle in itself. हालेलुया। जब प्रार्थना की सभाओं में ज्यादा पुरुष आएंगे, पुरुष आते रहेंगे, तब तो वो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। The sisters will get embarrassed. जो बहनें हैं फिर वो बिल्कुल शर्मिंदा हो जाएंगी। The brothers are praying loud and they're prophesying and you know they're getting visions and the brothers are intercessors now. फिर बहनें बोलने लगेंगी, अरे देखो पुरुष जो है, हमारे पुरुष, अब वो तो हमारे भाई प्रार्थना करने लग रहे हैं, वो तो भविष्यवाणी देने लग रहे हैं, जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे कितनी अच्छी बात है। Like I said, on Facebook or if you go onto internet, every day you only see on every single Christian page there's sisters that are preaching and praying. मैंने जैसे बताया था, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कहीं पर आप जाइए, आजकल ज्यादा से ज्यादा बहनें आप दिखेंगी, आपको दिखेगी जो दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रचार कर रही है। So I also told my wife, there's no need to go on those pages anymore because there are enough of women preaching out there. You don't need. That's right. तो इन्होंने मुझे बोला, यदि आपको लोग बुला भी रहे, इनविटेशन दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है जाने की उन पेजेस के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा बहनें वहाँ पर बोल रही है, बोल चुकी है। So we need the brothers to rise up. लेकिन अब समय आ गया है भाइयों को खड़े होने की, उठने की। Put on your full हालेलुया। armor. आपके हथियार को धारण कर कीजिए। Just look, we started off with the belt of truth last week. और पिछले हफ्ते में हमने कमरबंद के बारे में सुना। Today we've done the breastplate of righteousness. आज उस धार्मिकता की झीलम के बारे में हमने सुना। So next week we're gonna continue with the shoes of the gospel of peace. और अगले वाले हफ्ते में शायद हम जो शांति के प्रचार के जूते, उसके बारे में देखने वाले We हैं। can even do maybe the shield. और एक और भी हम हिस्सा उस हथियार का देख सकते हैं जो ढाल होती We है। have the helmet of salvation. We have the sword of the word. उसके बाद में उद्धार का टोप है और आत्मा की तलवार। Well, I thought it would just be one or two sessions and we'll be finished. No, there is so much to be said. मुझे लगा एक दो सेशंस में हम सब खत्म कर पाएंगे, लेकिन नहीं, इतना ज्यादा, एक एक चीज पर इतना ज्यादा हम बोल सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं। Like I said, मैंने बताया, the devil does not want your soul
शैतान नहीं चाहता कि आपका प्राण, to get in touch, to get in contact with the Spirit. आपका प्राण आत्मा के साथ जुड़ जाए। शैतान ये बात बिल्कुल नहीं चाहता। Our mission now is, हमारा काम अभी है, this is not a mission impossible, this is possible, ये जो हमारा काम कर्तव्य है वो असंभव नहीं संभव है। is to get the soul in contact with the Spirit, Amen. so that the Spirit can release that righteous seed into the soul. Amen. हमारा एक ही काम है भाइयों बहनों, एक ही काम। वो क्या है? हमारे आत्मा को उस प्राण के साथ जोड़ने के लिए, हमारे प्राण को उसके साथ जोड़कर फिर आत्मा का जो बीज है धार्मिकता का उसके अंदर छोड़ दिया जाएगा और प्राण के द्वारा शरीर में छोड़ा जाएगा। So when you love a brother and a sister in the Spirit, जब आप किसी भाई और बहन के ऊपर आत्मिक तौर पर प्यार करते हो, there मोहब्बत won't be करते any हो, misunderstandings. जब आप प्रेम पूरे मन से करते हो तो आपके आपस में गैर ऐसे भेदभाव और विचार नहीं होंगे You won't be oversensitive or negative. और ज्यादा आपके मन को चोट किसी की बातों से नहीं लगेगी। आप ज्यादा किसी के लोगों के बातों को ध्यान नहीं You देंगे won't be remember the sermon of narcissism? You will not be a narcissist. और आपको वो याद आ रहा है जो मैंने प्रचार किया था इधर, जो इस प्रकार के नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, No. जो अपने ऊपर प्रेम करने वाले स्वप्रेमी So when लोग you होते हैं। meet in the Spirit and you love with the Spirit and you are in the Spirit, you are led by the Spirit. Amen. You will not have these kinds of Hallelujah. we won't have this kind of situation that we have right. in each and every church all over the world. मैं अपने भाई बहनों को बोल रहा हूँ, जब आपके अंदर आत्मा होगा, जब आत्मा के द्वारा आप चलते जाओगे, जब आत्मिक और रूहानी बातों को आप सुनकर उसका पालन करोगे, सुनिए, तब आपको संसारिक लोग जैसे उनके मन को चोट लगती है, जैसे वो बिल्कुल उदास हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, वैसे आपको नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में बिल्कुल अलग स्तर पर चल रहे हैं। It says in Ezekiel, I will give you a new heart. Ezekiel 36:26. एजकेल 36 और 26 में लिखा गया है। And a new spirit I will put within you. एजकेल 36 और 26 में वो बोल रहा है कि मैं आप तेरे अंदर एक नई आत्मा दूंगा And I will remove the heart of stone from your flesh. और तेरे अंदर जो पत्थर समान हृदय में And I निकालूंगा। will put my spirit within you and आमीन। और मेरी आत्मा को मैं तेरे अंदर, मेरी रूह को तेरे अंदर रखूंगा cause you to walk in my statutes and be careful to follow my rules. 36 और 26 में लिखा है, 36:26 Ezekiel. 26वीं आयत मेरे साथ पढ़ लीजिए। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। Amen, amen. So God will give मांस you का a हृदय। new heart. अरे Yes. पत्थर Yeah. का हृदय वो निकालेगा और मांस का हृदय आपके अंदर डालेगा। Amen, हालेलुया। amen, amen, amen. So we're going to pray right now. आइए हम सब इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे हैं। We're going to pray प्रार्थना करने वाले हैं इस वक्त। for all the Kabod Temple family and all Hallelujah. other friends who are watching us. सारे हमारे कबोड टेम्पल के परिवार के लोगों के लिए और बाकी जो हमारे दोस्त हैं, जो पहचान वाले लोग हमें देख रहे हैं, सब पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करने I'm वाले very हैं। glad. I am worried for your soul. क्योंकि आपके प्राणों के लिए हम चिंता करते हैं। I know Yes. the times that we are living in. That's right. किस समय में हम जी रहे हैं वो मैं जानता हूँ। The devil wants your soul. शैतान आपके प्राण के पीछे पड़ा है। He wants to contaminate your soul. आपके प्राण को वो दूषित करना चाहता है। He doesn't want your soul to get in contact with the Spirit. वो नहीं चाहता कि आपका प्राण उस आत्मा के साथ जुड़ जाए। And now it is easier to separate the soul from the Spirit. और अब और भी आसान हो गया उसे कि प्राण को आत्मा से विभक्त करने के लिए, अलग करने के लिए। This lockdown has acted as a catalyst to prevent the believer from having fellowship with other Christians, with other brothers and sisters. ये लॉकडाउन जो है वो एक मानो एक साधन बन गया है कि विश्वासियों को, भाई बहनों को, जो विश्वासी भाई बहन हैं, उनको अलग रखने के लिए एक दूसरे से। He's working overtime. शैतान अरे बहुत जोरावर रीति से काम कर रहा है अपना। These are the end days. ये जरूर अंतिम दिन है। These are perilous times like the Bible says. That's right. बाइबल में लिखा हुआ जैसे है कि ये वो अंत का समय बड़ा भयानक समय है। Many prophets would have loved
to live in these days, बहुत से प्राचीन काल के जो भविष्यवक्ताएं थे, जो भविष्यवक्ता नबी थे, इन दिनों में जीने के लिए वो बड़े तरस रहे थे। yes, we have the privilege of living in this time. यस, लेकिन आपको और मुझे ये सौभाग्य दिया है इस समय में जीने के लिए। For we are going to see the coming of, Hallelujah. of our Lord and Savior. क्यों? क्योंकि आपके और मेरे उद्धारकर्ता का जो आना है वो आप और मैं अपनी आंखों से देखने वाले The हैं। time is close. It's just round the corner. ये समय बड़ा करीब आ पहुंचा है। That is why, brothers and sisters, we need to keep our souls safe. अरे and वो clean. समय बहुत, वो दिन बहुत निकट आ गया है, इसलिए भाइयों बहनों आपको और मुझे हमारे प्राणों को शुद्ध और पवित्र और साफ रखना जरूरी Young है। man, young woman, जवान बच्चे, जवान बेटा और बेटी, you who are working in places where you are surrounded by people of this world. जहाँ आप युवक हो और आप किसी नौकरी में जा रहे हो, काम में जा रहे हो, जहाँ पर सब तरफ संसारिक लोग हैं, You need to protect your soul. उन संसारिक लोगों में रहकर आपको अपने प्राण को सुरक्षित और महफूज रखना है। You need to protect your soul. सुरक्षित रखना है, उसको बिल्कुल चोट नहीं पहुंचानी बाहर से। Amen. Let हालेलुया। us close our eyes this morning. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें This morning, let this prayer be like a confession. और आज सुबह हम एक मानो कुछ चीजें कबूल करने वाले हैं। We're going to pray for the Kabod Temple family and all our friends who are watching us right now. और हमारे सारे दोस्तों के लिए, कबोट टेम्पल के परिवार के लिए हम दुआ करने वाले हैं। Oh, Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा, Oh, yes, we come to you in ओ prayer this morning. खुदा का रूह, हमारा प्रिय पवित्र आत्मा तेरे सामने आ जाते हैं। For you are our helper, you are our counselor. तू ही हमारा सहायक, तू ही हमारा सलाहदार है। You are the Spirit of the living God. जिंदा परमेश्वर का तू आत्मा है। And you dwell inside of us. ओ जीवित है परमेश्वर का आत्मा तू होकर हमारे अंदर Oh, जीता yes, we है। thank you, Father God, for making our body a temple. धन्यवाद खुदा बाप कि तूने हमारे शरीर को तेरा मंदिर बनाया, Which dwell the Holy of Holies. जहाँ पर जिसके अंदर वो परम पवित्र स्थान है। Oh, your Holy Spirit. तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। Hallelujah, थैंक यू hallelujah. जी। This morning, इस सुबह के वक्त I pray for each and every one who's watching us right now. हर एक व्यक्ति के लिए मैं दुआ करता हूँ जो हमें देख रहा है। Stretch out your hand and receive. तेरे हाथ को बढ़ा और तू उन्हें दे। आपके हाथों को बढ़ाइए और आप ग्रहण कीजिए इस वक्त। I ask you this morning, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, मैं तुझे विनती कर रहा हूँ आज सुबह के वक्त, fit us तू हमारे ऊपर with your purity and holiness. ओ तू हमारे अंदर तेरी शुद्धता, पवित्रता हमारे अंदर तू ढेल दे। Which comes Yes, from Lord. the Spirit, which comes from Oh. within you. जो पवित्रता, जो शुद्धता तेरी ओर से आती है, उससे हमें तू भरपूर कर दे। Receive आप ग्रहण कीजिए, right now अभी अभी आप प्राप्त कीजिए that holiness and purity. उस आत्मा की ओर से रूहानी जो पवित्रता और शुद्धता को आप ग्रहण कीजिए। Get rid of all those things which have contaminated your soul. और उसके पहले आपके प्राण को आप साफ कर दीजिए। जो कुछ भी गंदी गंदी बातें उसको निकाल दीजिए। And allow the Spirit to release righteousness, that seed of righteousness. Receive that seed of righteousness right now. Let it enter and fill your soul. आप इसी वक्त सारी उस मलिन और गंदी बातों को हटाकर उस पवित्र आत्मा की अच्छी, भली, पवित्र और शुद्ध बातों को यीशु के नाम से ग्रहण कीजिए। आपके प्राणों को उसको भर के लीजिए। For this is what is going to protect you. Lord, This let is it what is fill- going to cause fill an them, I pray, armor. in the name of This is your armor to protect you from the attacks of the enemy. ओ आपके प्राणों को शुद्ध करके आप पवित्र बना दीजिए, क्योंकि वही आपकी हिफाजत करेगा दुश्मन के सारे हमलों से। Allow that seed of righteousness to flow from the Spirit into your soul. धार्मिकता की बीज को आपके आत्मा के अंदर से निकलने आप देना कि आपके प्राण में वो जाएगा। Let it flow this morning, Lord. उसको बहने देना उस Let बीज it को। flow into the That's soul. right. ओ अपने हाथों को उठाकर उस धार्मिकता की बीज को आपके अंदर से बहने देना,
आपके प्राण के विभाग में Receive Oh, that hallelujah. holiness and receive that purity in your heart. उस पवित्रता को, उस योग्यता को, इस शुद्धता को आपके हृदय में आप Put on ग्रहण the कीजिए। armor, put on the breastplate of righteousness. धार्मिकता की झीलम पहन लेना, उस हथियार को आप धारण कीजिए। Oh Lord, I pray. खुदा I बाप, pray मैं आज this दुआ morning करता हूँ for all those who have received that seed of righteousness, that we will remain righteous in your eyes. खुदा बाप, मैं दुआ कर रहा हूँ कि हर एक जन को धार्मिकता की वो बीज मिल पाएगी, उसमें वो चलेंगे ताकि आप तेरे जैसे हम भी पवित्र बनेंगे। I will become a righteous being, कि मैं धार्मिक व्यक्ति बनकर चलता रहूंगा and I will meditate on your word, और तेरे वचन के ऊपर मैं मनन करता and I will रहूंगा, obey your commandments. अध्ययन करता रहूंगा और तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूंगा, For I am a righteous being. क्योंकि मेरे अंदर वो धार्मिक बीज तूने बोया है। I receive मैं ग्रहण करता हूँ seed this morning उस बीज को, उसके परिणाम को, in the mighty name of the Holy One of Israel, Yeshua HaMashiach. यीशुआ हमशीयाह जो इस्राएल का पवित्र परमेश्वर, उसके नाम से ग्रहण We करता हूँ। receive that seed. हम सब ग्रहण करते हैं। हालेलुया, Amen. आमीन, Amen, amen, आमीन, Brothers and sisters, आमीन। भाइयों बहनों, today आज we have released यहाँ से हमने कुछ बातों को बोला है, seed छोड़ा of है। righteousness into your soul. उस धार्मिक बीज को आपके प्राण में आपने छुड़वाया है। There will be a transformation, there will be a आमीन। change. आज से लेकर आगे आपके जीवन में बदलाव जरूर आप देखेंगे, जरूर ही आप You देखेंगे। will see that change, you will feel आप that change. बदल और बदलाव देखने वाले हैं और महसूस करने For the वाले हैं, soul is going to release it to the body, क्योंकि प्राण उस बीज को लेकर शरीर में उसको छोड़ेगा which will be your actions. और आपके शरीर में जब धार्मिकता आने लगेगी तब आपके कर्मों के द्वारा दिख जाएगा। Amen? आमीन। Amen.